Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 12th lecture series. Continuing the lecture series of solving MCQs and sums of class 12 physics, today we'll be covering the textbook unsolved sums of chapter 8 electrostatics. We have already covered the MCQs of this chapter. If you have not seen it yet, please check it out by clicking on the top right eye icon. Let us start with the first sum. A dipole with its charges minus q and plus q is located at 0 minus b 0 and 0 plus b 0 is present in a uniform electric field E. The equipotential surface of this field are planes parallel to the YZ planes. What is the direction of the electric field and how much torque will the dipole experience in this field? अब ये चार्जेस का लोकेशन देख के हमें समझ में आता है कि दे आर लाइंग ऑन दी वाई एक्सिस क्योंकि बाकी एक्स और जेड कोऑर्डिनेट्स तो जीरो है. सो लेट अस से दिस इज दी वाई एक्सिस. हम लोग यहाँ पे एक्स और जेड एक्सिस भी बना लेते हैं. सो ये माइनस क्यू इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ माइनस बी. तो नीचे कहीं पे यहाँ पे माइनस बी मार्क कर देते और यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू and plus q charge is located at plus b. So उतना ही equal distance ऊपर origin से plus b पे we got charge plus q located. And when you have two charges which are equal and opposite, then they form a dipole. जैसे मैग्नेट में डाइपोल फॉर्म होता है साउथ और नॉर्थ पोल से, वैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है. नाउ डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है इट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. So यहाँ पे dipole moment P is in the direction of positive y-axis. Next उन लोग ने क्या बोला है कि there is this equipotential surface of this field which is parallel to yz plane. सबसे पहला समझ लेते हैं कि equipotential surface क्या होता है. कि जब भी एक uniform electric field होता है then we can draw a plane and every point on this plane will have same electric field and therefore same potential. Therefore this entire surface is called as equipotential surface because of this uniform electric field जो यहाँ पे flow हो रहा है. Now what we can see over here is कि ये जो electric field है it is perpendicular to this equipotential surface. In this given question equipotential surface जो है इस field का it is parallel to yz axis. तो यहाँ पे equipotential surface बना देते फटाफट. So let us say ये yz plane है and the electric field is passing through this plane और उसको perpendicular होगा. So we got the direction of electric field. This will be perpendicular to this yz plane means the direction will be parallel to x axis. Now we are not sure कि वो positive x axis की तरफ जा रहा है या negative x axis की तरफ जा रहा है. ठीक है. So यहाँ पे जो electric field है उसका magnitude होगा E और उसका direction हो सकता है plus or minus unit vector I which is vector along x-axis. I hope आपको ये समझ में आया. Next we are supposed to find out torque over here. Torque experienced by a dipole is given by dipole moment P cross E. And ये dipole moment P is given by the magnitude of the charge into the distance between the two charges. तो ऊपर प्लस बी नीचे माइनस बी तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2b. Into this electric field का magnitude let us say is E. So this is the torque that it will experience. लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? टॉर्क का डायरेक्शन हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके मिल जाएगा. तो यहाँ पे लेट अस से दिस इज द डाइपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे वील बी यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से करते आ रहे हैं. इफ यू कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम P टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E, you will find that your thumb is pointing inwards. Inwards मतलब towards negative z axis हो जाएगा. So in that case the direction will be given as minus k. Whereas जैसा हमने बोला we are not sure कि electric field कौन से side पे. So अगर P is pointing upward and if electric field is pointing towards the left या negative x axis, then now if you curl the fingers of your right hand from P to E in this direction, anti-clockwise direction, you will find that thumb is pointing outward. मतलब पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग. यानी इसको आप प्लस k लिख सकते हैं वेयर k इज यूनिट वेक्टर अलोंग z. तो ये हो गया टॉर्क जो एक्सपीरियंस करेगा डाइपोल. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट वाला सम देख लेते हैं. 3 charges minus q plus q and minus q are placed at equal distance on straight line
if the potential energy of the system of the three charges is 0, then what is the ratio of capital Q by small q? तो 3 पॉइंट यहाँ पे बना देते विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. बीच में यू गॉट प्लस q और एंड्स में वी हैव माइनस q. लेट अस से इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज r. सो फर्स्ट और लास्ट वाले चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 2r. Now potential energy between two charges is given by 1/4 pi epsilon naught. न्यूमरेटर में आएगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड डिनोमिनेटर में आएगा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस. हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ दीज थ्री चार्जेस और उसको इक्वेट करना है इक्वल टू 0. हम लोग क्या करेंगे, दो चार्जेस एक साथ में कंसिडर करेंगे. सो वी विल हैव 1/4 pi epsilon naught. इसको कॉमन ले लेते हैं सारे केसेस में. पहले ये दोनों चार्ज को ले लेते हैं. सो माइनस क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय इनके बीच में डिस्टेंस क्या है r प्लस अब हम लोग ये सेंटर वाला चार्ज और राइट साइड वाले चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught. हमने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है. q इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज r प्लस जो चार्जेस है एंड्स में माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, उसके लिए हमें आ जाएगा माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2r. ठीक है. अब हमें पता है कि दिस इज गिवन एज इक्वल टू 0, तो हम लोग ये 1/4 pi epsilon naught उस बाजू भेज देंगे तो वो भी 0 हो जाएगा. व्हाट वी आर लेफ्ट विद दिस, ये पहला दो टर्म्स देख लो, दोनों सेम है तो इनको हम लोग ऐड कर सकते हैं. सो वी विल हैव -2 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r प्लस ये माइनस क्यू माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2r. दिस इज इक्वल टू 0. नेगेटिव टर्म को दूसरे बाजू ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2r. ये r दोनों बाजू डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर से q कैंसिल हो जाएगा एक स्मॉल q. सो हमें बचा क्या, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q. दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इज 4. ये हमें आ गया यहाँ पे रेशियो इसका. होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट वाला सम देख लेते हैं. A capacitor has some dielectric between its plates and a capacitor is connected to a DC source. So capacitance in this case क्या आ जाएगा, K epsilon naught A by D, where K will be the dielectric constant of the material जो वहाँ पे रखा हुआ. Now when you connect this with a DC source, इसके अंदर charge accumulate हो जाएंगे, that will be equal to CV. Now what they are doing is the battery is disconnected and the dielectric is removed. अब आप जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दोगे एंड इन दैट केस जब आप डाइलेक्ट्रिक निकाल दोगे तो नया जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो क्या रहेगा, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट A by D, क्योंकि अब खाली बीच में दोनों प्लेट्स के बीच में खाली क्या रह गया, एयर रह गया या फ्री स्पेस. नाउ व्हेन यू कंपेयर दिस विद दिस वन, व्हाट यू फाइंड इज C dash is nothing but capital C upon K. So what we see over here is कि capacitance over here has decreased by a factor of K. Now since the capacitor is disconnected, चार्ज कहीं पे जाने नहीं वाला है. सो प्रीवियसली जितना चार्ज था बाद में भी जो चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा, C dash V dash and charge is Q dash, but we can say that कि Q dash is equal to Q because charges are not going anywhere, capacitor is disconnected. So we have C dash V dash, this is equal to C into V. C dash हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया. वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज V dash. दिस इज इक्वल टू C इंटू V बाय C dash. सो ये हो जाएगा C इंटू V एंड C dash हमें क्या मिला, C by K. तो ये C कैंसिल हो जाएगा और ये K न्यूमरेटर में आ जाएगा. सो द न्यू वोल्टेज इज K टाइम्स द ओल्ड वोल्टेज, यानी यहाँ पे वोल्टेज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ बाय अ फैक्टर ऑफ K. नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड अबाउट द एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी over here is given by half into Q into V. आप CV square से भी कर सकते हैं, you will get the same relation. Now this was the previous energy. नया energy जो रहेगा that will be half Q dash V dash. ठीक है. We know that कि charge has not changed, so Q dash की जगह पे हम लोग Q लिख सकते हैं और V dash की जगह पे we will write K into V जो हमें अभी अभी मिला. So this will be equal to half QV into K. Now this is nothing but half QV is nothing but the previous energy. यानी what do we find is कि यहाँ पे भी energy क्या हुआ, increase हो गया by a factor of K. Lastly, we are also supposed to find out the electric field. Now electric field is given by
the potential applied divided by the distance between the plates of the capacitor. So new electric field will be equal to new potential divided by the distance, जो कि change नहीं हुआ. So this will be equal to V dash is kV divided by D, and this V by D can be written as electric field यहाँ से. So once again what we find is कि electric field भी क्या हो गया, increase हो गया by a factor of K. Hope you all understood this. Next वाला sum देख लेते हैं. Find the ratio of the potential differences that must be applied across the parallel and series combination of two capacitors C1 and C2 with their capacitance in the ratio 1/2, so that the energy stored in these two cases becomes the same. Scenario क्या है कि यहाँ पे दो capacitors है C1 and C2, एक बार उसको सीरीज में कनेक्ट किया और दूसरी बार उसको पैरेलल में कनेक्ट किया. इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या दिया हुआ है कि C1 upon C2 is 1/2, और यू कैन से दैट C2 is 2 times C1. तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम जब निकालते हैं तो जैसे रेजिस्टेंस में पैरेलल के लिए फाइंड करते हैं, वैसे यहाँ पे कैपेसिटर में सीरीज के लिए फाइंड करते हैं. एग्जैक्टली उल्टा होता है. रिमेंबर दिस, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर के लिए यू विल हैव सेम मेथड फॉर फाइंडिंग पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, और कैपेसिटेंस के लिए इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट. ओके, तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसको शॉर्ट में आप C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 भी लिख सकते हो, बट याद रहे ये खाली दो ही कैपेसिटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो ये शॉर्टकट. दो से ज्यादा है तो यू हैव टू गो विद दिस कन्वेंशनल मेथड. सो यहाँ पे लेट अस पुट द वैल्यूज. C1 एज इट इज लिख देते हैं. C2 आ जाएगा 2C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 2C1. सो ये हो गया 2C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3C1. एक C1 कैंसिल हो जाएगा, सो वी गॉट सीरीज कॉम्बिनेशन एज 2C1 by 3. पैरेलल का बात कर लेते हैं. पैरेलल काफी आसान होगा. CP इज इक्वल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 प्लस 2C1 यानी 3C1 आ जाएगा ये हमें. ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है एकदम आसानी से. नाउ व्हाट दे वांट इज दे वांट कि पोटेंशियल का वैल्यू शुड बी सच दैट कि इनके अंदर जो एनर्जी रहे वो सेम रहे, यानी एनर्जी in the series combination should be equal to energy in parallel combination. तो एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस लिख देते. इट विल बी हाफ CS VS स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ CP VP स्क्वायर. हाफ डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो हम लोग VS by VP द होल स्क्वायर एक साइड पे ले लेते हैं, दूसरे साइड पे वी गॉट CP by CS. CP हमें मिला है 3C1, CS हमें मिला है 2/3C1, तो ये C1 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विद VS by VP द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9/2. आप रूट ले लोगे तो इनका रेशियो मिल जाएगा आपको. 9 का रूट हो जाएगा 3, 2 का रूट हो जाएगा √2. सो दिस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल्स दैट शुड बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट वाला सम देख लेते हैं. Two charges of magnitude -4 and +2q are located at points 2a, 0 and 5a, 0 respectively. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 4a with its center at the origin? So let us say ये circle है जिसका center है origin 0 0. Now इसका radius जो दिया है वो हमें दिया है 4a, and they are saying that कि there is this charge -4q at this point somewhere at 2a. यहाँ पे charge है -4q, and there is another charge +2q at coordinate 5a, 0. मतलब ये horizontal axis पे ही आ जाएगा, right? Now they are asking कि what is the electric flux due to these charges through the surface of the sphere over here. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ यूज करेंगे. एंड गॉस लॉ सेज दैट कि कोई भी अगर सरफेस हम एज्यूम कर रहे हैं जिसके अंदर कुछ चार्जेस है, देन द फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस इज गिवन बाय नेट चार्जेस इनसाइड द बॉडी एज्यूम डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट. ओके, अब यहाँ पे नेट चार्ज मतलब क्या होता है कि ओवरऑल कितना चार्ज है इनसाइड द स्फीयर. बाहर कुछ भी रहने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर कितना चार्ज है दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो अंदर अपने पास चार्ज है यहाँ पे -4q. सो आंसर हो जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू -4q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. और एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस से यहाँ पे चार्ज है +2 कूलम और चार्ज है यहाँ पे -3 कूलम.
तो यहाँ पे नेट चार्ज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू +2 - 3 यानी +1 कूलम. ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ नेट चार्ज. एंड अगर बॉडी के अंदर जो हम एज्यूम कर रहे हैं गॉसियन बॉडी, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, देन द फ्लक्स कमिंग आउट विल बी इक्वल टू 0. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट वाला सम देख लेते हैं. A 6 microfarad capacitor is charged by a 300 volt supply. So capacitance है 6 microfarad, voltage है यहाँ पे 300 volts. तो यहाँ पे what we can do is we can find out the energy which is given by half CV square. तो ये आ जाएगा half into capacitance is 6 into 10 raised to -6 and voltage is 300, उसका हमें square लेना पड़ेगा. तो ये 2 3s are 6 हो गया. So we got 3 into 10 raised to -6 और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10 raised to 4. So we are left with 27 into 10 raised to -2 joule. ये इनिशियली वो कैपेसिटर का एनर्जी है. Now it is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 3 microfarad capacitor. ठीक है, कनेक्टेड मतलब इट विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल. सो जो नया कैपेसिटेंस रहेगा दैट विल बी C1 + C2. सो ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड + 3 माइक्रोफैराड, दिस इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैराड. हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अभी नए केस में क्या होएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होएगा दोनों कैपेसिटर में. Charge initially and charge finally is always same in a disconnected capacitor. So C dash V dash will be equal to C into V. ये हमने पहले के भी सम्स में यूज किया था. So नया वोल्टेज हो जाएगा old capacitance volt divided by new capacitance. This is equal to old capacitance है 6 माइक्रो और वोल्टेज था 300 divided by new capacitance is 9 माइक्रोफैराड. तो ये 10 raised to -6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 300 is 300. सो यहाँ पे हमें नया वोल्टेज मिल गया विच इज हाउ मच 200 वोल्ट. वोल्टेज मिल गया, कैपेसिटेंस मिल गया, तो हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं. सो न्यू एनर्जी इज हाफ CV स्क्वायर विच इज हाफ इंटू न्यू कैपेसिटेंस इज 9 माइक्रोफैराड. तो 9 into 10 raised to -6, नया वोल्टेज इज 200, उसका स्क्वायर. So we got 1/2 into 9 into 10 raised to -6 into 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10 raised to 4. So ये कैंसिल हो जाएगा 2 2s and we are left with 18 into 10 raised to -2 joules. So ये न्यू एनर्जी है. We can see कि एनर्जी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. So the energy lost will be the difference in the energy. So ये 27 into 10 raised to -2 minus 18 into 10 raised to -2 will give us 9 into 10 raised to -2 joule of energy जो लॉस हुआ है. आई होप आप लोग को ये समझ में आया. Thank you for your time. If you're finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. Based on your feedbacks and suggestions, we'll be making videos under our 5 minutes lecture series for class 12. So please feel free to let us know the topics you want us to cover. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.